ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم۔ شاہ ولی اور نوسترا ڈیمس کی پیشین گوئیاں۔ آخری عالمی جنگ شاہ صاحب نوسترا ڈیمس کی جو بھی پیشین گوئیاں ہوں ہمیں اپنی خود احتسابی اور تیاری کرنا ہے۔ مسلمانوں پر جب بھی تکالیف و مصائب کا دور آتا ہے، ہمارے لکھاری مشہور بزرگ شاہ نعمت اللہ ول شہرک آفاق ماہر نجوم نوسترا ڈیمس کی پیشین گوئیوں میں خوشگوار ترامیم سے صرف معجزات کے سہارے زندہ و تابندہ رہنے کی عادی امت کو تسلی دینا این عبادت گردانتے ہیں۔ دنیا میں ہولناک آتش حرب بھڑکنے کی تیاری میں ہو یا ملک و ملت کو 400 خطرات درپیش ہوں، ہمارے حکمرانوں اور سیاست دانوں کے لیے دھاندلی کا رونا دھونا اور سرمایہ کی بیرون ممالک منتقلی، جبکہ عوام کے لیے اپنے اپنے لیڈروں کی کذب بیانیوں اور کرپشنوں کا دفاع این عبادت ہے۔ ہم اپنے زوال اور بربادی کے اصل اسباب تلاش کرنے، اپنا انفرادی و اجتماعی جائزہ لے کر اپنا احتساب کرنے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے ایمان افروز حکمت عملی نہیں اپناتے، لیکن صاحبان کشف و ولایت ماہرین نجوم کی پیش گوئیوں پر مستقبل میں مجزان قدرت سے دشمنوں کی تباہی اور اپنی ہنگ لگے نہ پھٹکری کامرانی کی خوش آئندہ توقعات قائم کر لیتے ہیں۔ نوسترا ڈیمس اپنے جس علم کو جوڈیشنل ایسٹرولوجی کا نام دیتا ہے، اس کے مطابق وہ کوئی جادوگری مافوق العقل کام نہیں، بلکہ درست حساب کتاب اور علم کا نتیجہ ہے۔ مگر خیال رہے کہ وہ بھی جہاں ہمیں مستقبل کے اہم سانحات کے بارے پیشگی بتا کر تباہی سے خبردار کرتا ہے، وہاں ماحول کو بچانے کے لیے اپنے اخلاق اور رویوں میں بہتری کی تلقین بھی کرتا ہے۔ بعض دانشوروں کے مطابق وہ چاہتا تھا کہ لوگ زیادہ باشعور 88 تعلیم یافتہ ہوں تو پرسرر اور پیچیدہ حقائق کے بارے ادراک پیدا ہونا ممکن ہے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، احباب، نعمت شاہ ولی رحمت اللہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اولیاء اکرام کی ولایت، کشف و کرامات پر صدق دل سے یقین رکھتا ہوں اور طبل دین کے لیے ان کی انتھک جہد کو عالم دہر میں اسلام کی روشنی پھیلنے کا سبب مانتا ہوں۔ مگر جب نام نہاد دانشور ان جیسے جید بزرگان دین کے کشف اور روحانی بصیرت سے وابستہ پیشین گوئیوں کے حوالے سے خود ساختہ بیان کرتے ہیں یا ان کے نام سے جعلی تحاریر پیش کرتے ہیں تو ان جعلسازیوں پر ماتم کو دل کرتا ہے۔ ایسی حرکات سے ان اولیاء اللہ کی بیان کی گئیں اصل باتیں بھی مشکوک ہے۔ میں شاہ صاحب کے نام سے جوڑی گئیں ان جعلسازانہ پیشین گوئیوں کو اپنی تحقیق کی بنا پر رد کرتا ہوں۔ مثلاً ان کے نام سے بیان کردہ پیشین گوئیوں پر مبنی جو اشعار بحر و اوزان، زبان و بیان اور فنی اعتبار سے ناقص ہیں، وہ شاہ صاحب جیسے انتہائی اعلیٰ پا شاعر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرے جن پیشین گوئیوں میں امریکہ، جاپان اور چین کا موجودہ نام ہے، وہ اس لیے جعلی ثابت ہوتی ہیں کہ شاہ صاحب کے دور سے 2 صدیاں بعد تک بھی امریکہ، جاپان اور چین کے نام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کچھ کالم نگاروں نے لکھا ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ نے امیر تیمور کے بارے اس کی پیدائش سے 200 سال قبل پیشین گوئیاں کی تھی، لیکن تحقیق کے مطابق شاہ نعمت اللہ ول شام کے شہر حلب میں 730 ہجری یعنی 1329 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ امیر تیمور 1332 ان کی پیدائش کے صرف 3 سال بعد عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے فرمان روا اورخان غازی اور ہند میں تغلق سلاطین کی حکومت کا دور تھا۔ حصول علم کے لیے عراق گئے اور 24 سال کی عمر میں مکہ تشریف لے گئے، جہاں اپنے مشہور بزرگ شیخ عبداللہ عیفائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مابعد ان کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ مکہ سے واپس عراق تشریف لائے تو اپنے کلمہ اشاریہ حق کی صدا بلند کرتے ہوئے قتل و غارت کو مسند کا ہتھیار بنانے والے امیر تیمور کی حکومت کو برملا ظالمانہ قرار دیا اور اس کی دعوت پر تاج شاہی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اسے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ گو اس وجہ سے متکبر و جابر امیر تیمور انہیں ناپسند کرتا تھا، لیکن آپ کے روحانی مرتبہ اور آبن ولایت کی وجہ سے ایذا و تکلیف دینے سے بھی خائف تھا۔ امیر تیمور نے اپنے پوتے شاہ رخ مرزا کو نوجوانی میں ہرات اور غزنی کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہیں شاہ رخ مرزا دینی تعلیم کے لیے آپ کی شاگردی میں آیا اور بعد ازاں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ چونکہ شاہ رخ مرزا آپ کا انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، لہذا شاہ صاحب نے اپنے علم کشف سے فارسی اشعار پر مشتمل مغلیہ خاندان کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیشین گوئیاں تحریر فرما کر عطا کیں، جو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوئیں۔ آنے والے ادوار کے بارے پیشین گوئیوں پر مبنی اشعار میں مغلیہ ادوار سین
पढ़िए लेकर सैयदना इमाम मेहदी के ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल सानी के दौर तक के हालात बयान किए हैं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक अंदाज़े के मुताबिक ये पेश गोइयाँ 1390 अशारिया की दहाई में लिखी गई थीं, जो तुर्की में अमीर तैमूर और बायज़ीद यल्दरिम के मार्कों और हिंद में तुगलक ख़ानदान के ज़वाल का दौर था। बाद अज़ां जूं जूं ये पूरी होती चली गईं, ये अशार हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में जंगल की आग की फैलते चले गए। 850 सफ़हात के दीवान में दर्ज फ़ारसी अशार सैकड़ों सालों से बमुताबिक असल नक़ल किए जाते रहे और मुतरज्जिम अपनी फ़हम के मुताबिक उनका तर्जमा शाये करते रहे हैं। अब का विसाल 832 हिजरी यानी 1428 ईस्वी में हुआ। ये सल्तनत उस्मानिया में बाहमी खल्फिशार और हिंद में अमीर तैमूर के परवरदा सैयद ख़ानदान का दौर हुकूमत था। शाह साहिब की पेशीन गोइयों का सिलसिला जिस शेर से शुरू होता है वो इस बात का ऐलान है कि उनका असल माखज़ इल्म कश्फ और क़ुर्ब इलाही है। अज़ नजूम ए साखन नमी गोयम बल्कि अज़ करदगार में बीनम। तर्जमा में ये बात इल्म नजूम के ज़रिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि ज़ात बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। और फिर शाह साहब ने मुग़ल हुक्मरानों के बारे जो सच्ची पेशिन गोइयाँ की, इनमें एक ये थी: अहफ्त पुश्त आश दर मुल्क हिंदू ईरान आ खरशोनद पिन्हा दर गोशाक नहाना। तर्जमा, उनकी साथ पाशित हिंदुस्तान और ईरान के मुल्क पर हुकूमत करेंगी, लेकिन आखिरकार एक गुमनाम गोशा में छप जाएंगे। मुग़लिया ख़ानदान के ज़वाल के बाद जिस पेशीन गोई की बेपनाह धूम मची वो नादिर शाह दुरानी का हिंद पर हमला और दहली का सफ़ाक कत्ल आम था। अब फरमाते हैं: नादिर आयद ज़ारा में सतानत तख्त हिंद कत्ल दहली पस बाज़ोर तेग आ पैदा शुद। तर्जमा, नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के ज़ोर से दहली का कत्ल आम होगा। अंग्रेज़ दौर में जिन पेशीन गोइयों ने गोरी सरकार पर हैबततारी करके इशात पर पाबंदी पर मजबूर कर दिया वो हर्फ बा हर्फ सच साबित हुई। अब फरमाते हैं: बाद अज़ां गिरद नसार मुल्क हिंदुयाँ तमाम तसदी हकमश मियाँ हुंदोस्तां पैदा शुद। तर्जमा, इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। जुल्म व अदावत चूं फुजूं गर्दोबर हिंदुस्तानिया जे नसार दीन व मजहब राजियां पैदा शुद। तर्जमा, जब अहल हिंद पर जुल्म और अदावत की ज़ियादती हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान के अंग्रेज़ वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने यह पेशिन गोई इस वजह से कानूनन ममनू करार दी थी कि शाह साहिब की पेशीन गोइयों की साख की वजह से अवाम में अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत ना पैदा हो। लेकिन यह पेशीन गोई भी 100% सच साबित हुई और अंग्रेज़ 100 साल के करीब हुकूमत करने के बाद यहाँ से रुखसत हो गए। शाह साहिब की पी शैन गोई के एन मुताबिक अंग्रेज़ों ने दीन में फितना पैदा करने के लिए कादियानियत का वो लानत आलूदा पौधा काश्त किया जो आज तक उम्मत मुस्लिमा की पीठ में खंजर घोंपने के लिए गोरे आकाओं का दुजली आलाकार है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त उस पेशीन गोई की बड़ी धूम थी। शाह साहिब फरमाते हैं: नारक इस्लाम बुलंद शद बस्त वसा अदवार चरख बाद अज़ां बार दिगर यक कहश पैदा शुद। तर्जमा, इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा, इसके बाद दूसरी बार उन पर एक कहर जाहिर होगा। गोया यह कहर इलाही पेशिन गोई के एन मुताबिक 1971 अशारिया में मुसलमानों की तबाही व बर्बादी और कत्ल व गारत के बाद सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में ज़ाहिर हुआ। गद्दार मुल्क व मिल्लत शेख मुजीब अर रहमान की वजह से 15 लाख गैर बंगाली और मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी 5 लाख बे निगालोहे का सफ़ाक कत्ल आम किया गया, जबकि इसी गद्दार की बेटी हसीना वाजिद आज तक मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी मुहिबान इस्लाम को फांसियों पर चढ़ा रही है। इंग्लिस्तान व अमरीका यानी अलिफ से शुरू होने वाले 2 ममालिक के हवाले से शाह साहिब की मुसद्दिक़ा पेशीन गोई है कि आ 2 अलिफ के गाफ्तुम अल्फ़े तबाह गर्देद रा हमला साज बायद बर अलिफ मगरिबाना। तर्जमा, 2 अलिफ यानी इंग्लिस्तान और अमरीका में से एक अलिफ तबाह हो जाएगा। रूस इंग्लिस्तान पर हमला कर देगा। जैम शिकस्त खुर्दा 12 बराबर आयद आलात नार आरनद मोहलिक जहनमाना। तर्जमा,
जंग अजीम दोम में शिकस्त खुर्दा जर्मनी या जापान रूस के साथ बराबरी करेगा। इस जंग में जहन्नुमी किस्म के मोहलिक आतशी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, मुमकिना तौर पर छोटिए है। तीसरी जंग अजीम होगी जिसमें हरीफ ममालिक के एटमी हथियारों की इतनी तादाद चलेगी जो पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगी। फिर इसी के तसलसल में फरमाते हैं, काहद अलिफ जहां के यक नुक्ता रोनमांद इल्लाह के इस्मो आदुश बाशद मरखाना। तर्जमा, इंग्लिस्तान इतना तबाह होगा कि इसका एक नुक्ता भी बाकी ना रहेगा सिवाय ये कि इसका नाम और तज़किरा तारीख की किताबों में बाकी रह जाएगा। ख्याल रहे कि हज़रत नेमत शाह वली की पेशीन गोइयों के हवाले से जिन लोगों ने अपने अपने मौक़िफ़ और अंदाज़े के मुताबिक खुद साख्ता अशार बना लिए, इनमें अंग्रेज़ों के वो आलाकार कादियान पेश हैं जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को नबी साबित करने के लिए शाह साहिब के नाम से जाली अशार शाये किए, लेकिन वो जालसाजी इसलिए उरिया हो गई कि इन शियार की ज़बान बंदी और शेरी औसाफ शाह साहिब के आलाफन सुखन के बरक्स इंतहाई नाक़िस थे। लिहाजा ज़हूर मेदी और नुज़ूल ईसा के इस्लामी अक़ीदे की सच्चाई की दलालत करता हुआ शाह साहिब का ये शेर बड़ा अहम है। अब फरमाते हैं, नागा बा मौसम हज मेदी ईयान बाशद ए शोहरत आनिश मशहूर दर जहाना। तर्जमा, अचानक हज के दिनों में मेदी अलैहि अस्सलाम ज़ाहिर होंगे, इनकी ज़ाहिर होने वाली ये शोहरत तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। ज़बाद अज़ अस्फ़ां दज्जाल हमदर आयद ईसा बराए क़त्लिश आयद ज़े आसमाना। तर्जमा, इसके बाद अस्फ़हान शहर से दज्जाल ज़ाहिर होगा, इसके कत्ल करने के लिए ईसा अलैहि अस्सलाम आसमान से आतर आएंगे। शाह ए साहिब की ये पेशीन गोई तमाम मुसद्दिक़ा अहादीस सहा के ऐन मुताबिक है। इस तरह नौसट्राडीमस की पेशगोइयाँ भी इस कदर दुरुस्त साबित हुईं कि उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मसलन उसने 100 साल कबल ये बता दिया कि बरतानिया की पार्लियामेंट अपने बादशाह का सर कलम कर देगी। इसकी सैकड़ों पेशीन गोइयाँ ऐसी हैं जो हर्फ बा हर्फ सच हुईं। रूस और फ्रांस का इनकलाब, चार्ल्स अव्वल की मौत, नपोलियन की कस्मोपुरसी, पहली और दूसरी आलमी जंगों का अहवाल, हिटलर की सवानख और अंजाम, 70 की दहाई में अरब ताकतों का उभरना, पोलैंड नजाद पोप पर कातिलाना हमला है जैसी तमाम पेशीन गोइयाँ 100% सच्ची हुईं। लिहाजा मुस्तकबिल के बारे में उसने जो कहा है इसे यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें अहम और वाज़े निशानियां रखने वाली पेशीन गोई अमरीका और बरतानिया में कमज़ोर करने वाले इखलाकी इन्हितात की तबाहकुन शिद्दत है, जिसकी वजह से ये ममालिक कमज़ोर होकर रूसी हमले का मुकाबला न कर सकेंगे। दुनिया में कहत और आलूदगी से तबाही, किसी बड़े मगरबी लीडर को जहर दिया जाना और समंदरी अफवाज के माबैन एक तनाज़ा का बिगड़कर इस तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करना कि जिसमें एटमी मिज़ाइलों का बेतहाशा इस्तेमाल और ज़लज़लों का तसलसल के साथ ही लिखर दुनिया की मुकम्मल तबाही ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो अभी पूरी होना बाकी है। ऐन मुमकिन है कि अमरीका का चीन के समंदरों और रूस का तुर्की के अर्द गिर्द अपना बहरी बेड़ा जमा करना ही मज़कूरा समंदरी तनाज़ा हो। शाह साहिब नौसट्राडीमस की जो भी पेशीन गोइयाँ हों, हर फारूक दरवेश के लिए सबसे अहम पेशीन गोई निब आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि मेरी उम्मत के 2 गिरोहों को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर जहन्नम की आग से बचाएंगे। एक गिरोह जो हिंद से जंग करेगा और दूसरा गिरोह जो उसके बाद आएगा और हज़रत ईसा इब्न मरियम का साथ देगा। मेरे आकाए नामदार के इस फरमान के मुताबिक बहर सूरत आखिरी फतह हमारी है, क्योंकि इन दोनों गिरोहों के लिए जहन्नम आग से पनाह और आखिरी फतह की बशारत ऐन हक है। लेकिन वो ग़ज़वा हिंद ड्राइंग रूम में कलाशनकोफ थाम कर फोटो सेशन करवाने वाले नाम निहाद जिहादी दानिश्वर मसाजिद में बम धमाके करने वाले भारतीय रा के एजेंट दहशतगर्द नहीं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तानी कौम के बच्चे, बूढ़े और जवान, ख़वातीन व हज़रात अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ेंगे। नाज़रीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।